Lord, we thank you for this time, Lord Jesus. We give this day into your hands, Lord. Let your presence be, Lord God, with each and every person present, Lord God. Lord, let us focus on you alone, Lord Jesus. You be first in our lives and reign in us, Lord Jesus. For you are the King of kings and the Lord of lords, Lord God. And there is no other but you, Lord Jesus. Let us keep our focuses on you alone, Lord God. And Lord, thank you for blessing our lives, Lord God. Lord, let us bless your holy name, Lord Jesus. And Lord God, give you first priority in our lives, Lord God. Help us understand your word also, Lord Jesus, and get revelations from your word, Lord, so we can speak your gospel to everyone, Lord Jesus, so that many more might come into your kingdom, Lord God. Bless the bread and cup also, Lord Jesus. As Lord God, you have done the work of the cross, Lord God, for us, Lord God, so that we might receive salvation, Lord Jesus. Bless us, Lord God, and even the tithes and offerings, Lord God. Let it multiply for your kingdom, Lord God, so that many more, Lord God, might get your gospel, Lord Jesus. And let each and every person know that you alone are God, Lord Jesus. For your word says, Lord God, that every knee shall bow and every tongue confess that you alone are God, Lord Jesus. And we believe in it, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for this time, Lord. Thank you for your Holy Spirit, Lord Jesus. And thank you for never leaving us nor forsaking us, Lord God. In your holy precious name, Lord God, we pray. Amen. हालेलुया। आइए आप स्तुति आराधना करेंगे हमारे परमेश्वर की, जो हमसे बहुत बहुत प्रेम करता है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। यस लॉर्ड, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the
name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. धन्य धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, हे महान। तू धन्य है प्रभु का नाम। हाँ प्रभु, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, हे महान। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, जिसमें दौड़ कर हम सुरक्षित हैं। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, जिसमें दौड़ कर हम सुरक्षित हैं। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, हे महान। यीशु आपका नाम महान है। यीशु है प्रभु का नाम, प्रभु। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, हे महान। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, हे महान। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, हे महान। हाँ प्रभु, हम घोषित करते हैं हमारे मुंह से, हम अंगीकार करते हैं प्रभु कि यीशु आपका नाम महान है। प्रभु आप यीशु मसीह, आप हमारे प्रभु है, आप हमारे उद्धार करता है, आप हमारे बचाने वाले परमेश्वर है, आप हमें शरण देने वाले परमेश्वर है, हमें बल से भरने वाले परमेश्वर हमारे आप है प्रभु। और यीशु है आपका नाम प्रभु। इसके नाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। हम आते हैं पिता आपकी शरण में प्रभु। आज के इस दिन हमें छू लो, हमें स्पर्श करो प्रभु। हम आते हैं आपके उपस्थिति में, हमें आप छू लो प्रभु, हमें छू लो। हमारे सारे पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। जो भी गलतियां हमने की हमें क्षमा करो पिता, मन से मुंह से पिता, अपने कार्यों से जो भी गलत किया है हमें क्षमा करो प्रभु। और यीशु के लहू से हमें साफ कर दो प्रभु, हमें पवित्र बनाओ प्रभु। हम आते हैं दौड़कर आपके शरण में, आप हमें स्पर्श कर दो, फिर से नया बना दो प्रभु। आपके बल से भर दो, आपकी शांति से और आपके आनंद से आप हमें भर दो। I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, and for all blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a
grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, yes, Lord. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। धो लहू से कर दे रूह से पाक मुझको और बना। आ गया हूँ मैं खुदाबंद, सुन ले मेरी ये दुआ। धो लहू से भर दे रूह से पाक मुझको और बना। आ गया हूँ मैं खुदाबंद, सुन ले मेरी ये दुआ। सृजनहार है तू, परवरदिगार है तू, शाहों का शहंशाह है, सबका है सब कुछ ही तू। सृजनहार है तू, परवरदिगार है तू, शाहों का शहंशाह है, सबका है सब कुछ है तू। आसमां की तली और न कोई मिले, आसमां की तली और न कोई मिले, सारी दुनिया को ले जो बचा। आ गया हूँ मैं खुदाबंद, सुन ले मेरी
दुआ दो लहू से भर दे रूह से पाक मुझको और बना आ गया हूँ मैं खुदावंद सुन ले मेरी ये दुआ सुन ले मेरी ये दुआ सुन ले मेरी ये दुआ। हाँ प्रभु, दुश्मन शैतान हमेशा हमें हैरान करना चाहता है, लेकिन फजल तेरा हमारा सहबान है। आपकी कृपा दृष्टि हमारी सुरक्षा है प्रभु। आपका शरण में आने से हम महफूज है, हम सुरक्षित है। आपकी उपस्थिति में हम बलवान है प्रभु। आपकी उपस्थिति में हम वो सब कुछ पाते हैं जिसकी हमें जरूरत है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम सबको स्पर्श करो प्रभु और हमें बलवान बनाओ आप में प्रभु। आपके रास्ते पर चलने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए, आपको महिमा लाने के लिए प्रभु आप हम सबको स्पर्श करो और आप हमें अपने रूह से भर दो प्रभु इस समय, ताकि हम जिए आपके लिए, आपको महिमा देने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा उद्धार किया प्रभु। आपने हमें बचा लिया, अंधकार से निकालकर हमें रोशनी में ले आए प्रभु, और आपने हमें भरपूर और अनंत जीवन दिया है प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद और आपके अनंत योजना के लिए धन्यवाद प्रभु। हम सारी महिमा, प्रशंसा, आराधना और स्तुति आपकी करते हैं प्रभु, क्योंकि आप योग्य है सारी स्तुति और महिमा की। आप योग्य है प्रभु, आप योग्य है। हम हमेशा यूं ही आपके बल में, आपकी उपस्थिति में और आपके दिए गए विजय में हमेशा हम जिए, यह हमारी प्रार्थना है प्रभु। इस दिन यह हम यीशु के नाम से करते हैं। आमेन एंड आमेन, आमेन। प्रभु की स्तुति हो भाइयों बहनों। आज हम प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले एक वचन पढ़ते हैं जो कि 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26 का है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करते उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है और तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु, जो जब तक वह न आए, प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर कि हमारे हर रोज़ के जीवन में हमारे जो भी कार्य है, हमारे जो भी सोच है, हर चीज़ को हम आपके सम्मुख लाते हैं और
कहीं भी जहाँ हम गलत हुए हैं, हम उसकी आपसे माफ़ी मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं, आपने जो क्रूस पर जो कार्य किया है हमारे लिए, जो आपने आपकी देह दी है और लहू बहाया हमारे लिए, हमारे चंगाई के लिए, हमारे छुटकारा के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम अब रोटी लेते हैं और उसे तोड़ते हुए याद करते हैं परमेश्वर को कि उन्होंने जो रोटी तोड़ी, सिर्फ रोटी नहीं तोड़ी, क्रूस पर अपना शरीर भी बलिदान किया हमारे लिए। और उसी तरह प्याला लेते हुए धन्यवाद देते हैं उनके लहू के लिए, जिससे हम छुटकारा पाते हैं, जिससे हम आशीषित होते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके उस क्रूस के कार्य के लिए और हमें ये सिखाने के लिए कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप से कैसे रहें। थैंक यू जीसस। आइए कलीसिया, अब उत्तम समय है बोने का। यशायाह नबी के 55वें अध्याय के 10 और 11 में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज, खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है, मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। यह आपका वचन है प्रभु, आपने वादा किया है। परमेश्वर पिता, जैसा जो बोता है परमेश्वर पिता, वैसे हम काटेंगे। खुदावन यीशु, आपने हमेशा हमको अच्छा दिया है, वर्षा दिया है प्रभु, ताकि ये भूमि से हमको खाने वाले को रोटी मिले। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमेशा परमेश्वर पिता, हम आपका आशीष आए रोटी के ऊपर, हमारे भोजन के ऊपर, हर एक हाथों के कार्य के ऊपर। परमेश्वर पिता, आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर भाई बहन के लिए। परमेश्वर पिता, जो जो कार्य वे करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं परमेश्वर पिता, वहाँ से बहुत आए, उनके लिए आशीष आए परमेश्वर पिता, और उनके हाथों के कार्य में सफलता आए परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी जो भाई बहन नौकरी देखते हैं परमेश्वर पिता, खासतौर पर इन कठिन समयों में उनके पास कुछ भी नहीं है, व्यवसाय हाथों में खुदा, और वे आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप उनकी प्रार्थना को सुनिए खुदावन यीशु, ताकि परमेश्वर पिता उनके घर में बहुताई का परमेश्वर पिता आशीष आए मेरे परमेश्वर पिता, सारे क्षेत्र में खुदावन यीशु। ये हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है, ये आपका वचन है, जैसे हमने पढ़ा और सुना खुदा, और इसमें हमारा विश्वास बढ़ाइए ताकि हमारी नज़र आप पर रहे खुदावन यीशु। जब आपकी ओर नज़र लगाता है उसके पास कभी कमी घटी नहीं होती है, क्योंकि हम आपके सामने अपना हाथ फैलाते हैं और झोली भी फैलाते हैं खुदावन यीशु, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारे अच्छे पिता हो और आपके बच्चों की आपको फिक्र है खुदावन यीशु। आप हमारी चिंता करते हो खुदावन यीशु, एक सूखी वो खेत की घास तक का आप परवाह करते हो। वो जो फूल है सुबह खिलता है शाम को मुरझाता है, उस पर आपकी नजर है खुदावन यीशु। एक उड़ती हुई चिड़िया के ऊपर आपकी नजर है खुदावन यीशु। सब कुछ आपके ज्ञान में है, आपकी नजरों में है, आपकी रखवाली में है खुदावन यीशु। और हम तो आपके बच्चे हैं खुदावन यीशु, आपके अनमोल रत्न है खुदावन यीशु, और आपकी हम बहुत फिक्र है खुदा। सारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बहुताई का आशीष बरसाइए खुदा। हर एक जो जिसकी प्रार्थना है उसकी मुराद आप पूरी करो मेरे यीशु। इस आखिरी समय में जो हम पूरे साल तक कठिन समय से गुजरे हैं खुदा, हम सब प्रार्थना मिलके करते हैं कलीसिया, हर एक के ऊपर, हर एक परिवार के ऊपर
व्यक्तिगत जीवनों में, हर एक कामकाज में, बच्चों की पढ़ाई में, सेहत में, हर एक क्षेत्र में खुदावन यीशु हम प्रार्थना करते हैं बहुताई का आशीष, आपकी सुरक्षा और आपकी रक्षा खुदावन यीशु। ये हम सारी प्रार्थना पिता हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. यीशु के नाम से आप सबका स्वागत है। We know we are in a festive season, हम सब जो है त्योहार के मौसम में है and we need to overcome things that try to oppose us. साथ ही साथ जो चीजों का सामना हमें जो करना है इन दिनों में, वो भी सही रीति से उसका सामना करना जरूरी है। The enemy wants to rob our joy. क्योंकि शत्रु हमारे खुशियों को चुराने की कोशिश करेगा। The demonic will try to kick in. और जो है शैतानी ताकतें अपने कार्यों को करने की कोशिश करेंगे। Whenever something good of God is being born, the enemy, its antenna comes up. क्योंकि जब भी परमेश्वर की ओर से कुछ अच्छा होने वाला होता है तो शत्रु भी अपनी ओर से कोशिशें बढ़ाता है। And as we bow and pray, और जैसे हम सिर को झुकाकर प्रार्थना करेंगे, we ask the God to anoint His word today. हम परमेश्वर से मांगेंगे कि आज का संदेश वो अभिषिक्त करे। May we understand from God's word और परमेश्वर के वचन से चीजों को समझेंगे and how we need to face the enemy, कि शत्रु का सामना हमें कैसे करना है, how we need to tackle the strategies that come from the other kingdom. और जो रणनीति दुष्ट राज्य से आती है उसका सामना कैसे करना है। And we say, teach us, the Lord, और हम प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु आप हमें सिखाओ, guide us and direct us. आप हमें मार्गदर्शन करो, दिशा दिखाओ। Father, we submit our lives and we open our hearts और प्रभु हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं So और that- अपने हृदय को खोलते हैं so that your word can go deep down inside and bring a transformation and change. ताकि आपका वचन हमारे हृदय की गहराइयों में जाकर हमारे जीवनों में बदलाव ले आ सके। May your word strengthen us today, Lord. आपका वचन आज हम सबको दृढ़ बनाए प्रभु, And may we put the things of the enemy outside our lives. और शत्रु के हर काम हमारे जीवन से हम निकाल बाहर कर सके। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Our God is a maker. हमारा परमेश्वर हमारे बनाना वाला है, Whatever He does is good. और जो भी वो करता है अच्छा होता We है। just need to open our eyes and see. हमें अपनी दृष्टि को बस खोलकर चीजों को देखना है। That's why we said last time that when you are born into the kingdom, He spoke to Nicodemus, you will see the things of the kingdom. और इसलिए पिछली बार जैसे हमने सीखा कि जैसे यीशु ने निकोदेमुस को कहा कि उसकी आंखों को खुलना जरूरी है ताकि वो राज्य की बातों को देखकर समझ सके। Whenever there is a birthing in the kingdom for your lives, the enemy does not like it. और जब भी राज्य में आपकी आंखें खुलती है चीजों को देखने के लिए तो शत्रु को ये पसंद नहीं आता He'll try to abort it. He'll try to do something. और वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। This is not a Christmas message, even though I'm going to Matthew verse chapter 2. हम आज मत्ती की दूसरी पुस्तक में जाएंगे जो है, लेकिन फिर भी आज जो है हमारा संदेश क्रिसमस के ऊपर नहीं है, उसके बावजूद जो है इस अध्याय से हम आज कुछ सीखेंगे। Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. यीशु के बेथलेहम में जन्म होने के बाद जो है हम देखते हैं हेरोद राजा के दिनों में ये हुआ था, बुद्धिमान पुरुष जो पूरब से आए थे यरूशलेम तक, saying, where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. और उन्होंने कहा कि वो कहाँ है जो यहूदियों का राजा जिसने जन्म लिया है, क्योंकि हमने उसके तारा को देखा है पूरब की तरफ और इसलिए हम आए हैं उसकी आराधना करने के लिए। When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. और आगे तीसरे वचन में लिखा है कि हेरोद राजा ये सुनकर बहुत ही परेशान हुआ और उसके साथ साथ पूरा यरूशलेम भी परेशान हुआ। Now Jesus was born in Bethlehem, was a very small place.
हम देखते हैं जो है यीशु का जन्म हुआ था और यरूशलेम बहुत छोटी जगह थी उस समय। It had no great value in sense of wealth or trade or commercial or any kind of things. और यरूशलेम का जो है Bethlehem. मुख्यता जो है उतना नहीं था, जो बेथलेहम का उतना नहीं था जो महत्व, क्योंकि उन दिनों में वहां पर कोई जो व्यापार या किसी भी प्रकार का महत्वता जो बेथलेहम में नहीं था। Now it says that at that time Herod was king. लिखा है उन दिनों में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो हेरोद राजा था। I'll give you a little history about this Herod. इस हेरोद के बारे में जो है थोड़ा सा इतिहास हम जानेंगे अभी। He was known as Herod the Great, उसका नाम था महान हेरोद and he was the king of Judea. और वो जुदिया का राजा था। Before that, he was the governor of Galilee. उसके पहले वो गलील में राज्य कर रहा था। See, we say that Jesus was a man from Galilee. हम कहते हैं कि यीशु मसीह गलील का व्यक्ति था। There is a lot of history why things keep cropping up. Herod also at the time when Jesus was being crucified. और जब यीशु का जो क्रूस पर वो डालने वाले थे तभी भी बहुत सारे जो कड़ियां जुड़ी हुई है इन सब चीजों में। And the Herod that was there was not the same as Herod the Great. और जो है हालांकि वो हेरोद जब यीशु मसीह क्रूस पर डाले जा रहे थे तब का हेरोद और जो पहले का हेरोद दोनों अलग अलग है। This Herod was king of Judea, as I told you. यीशु मसीह का जन्म जब हुआ था तब ये हेरोद जो है जो जुडिया का राजा था। He was a tyrant, very wicked man under demonic influences. और वो बहुत ही जो है ये जो हेरोद था जब यीशु का जन्म हुआ था वो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था, बहुत ही जैसे एक दुष्ट योद्धा के समान। He was very shrewd. बहुत ही जो सख्त था लोगों के साथ। He only looked to his own benefits. और हमेशा खुद की भलाई की तरफ ही देखता था। He pleased Rome. और रोमी का जो है हमेशा अच्छा सोचता था। Even though he built the second temple, हालांकि उसने दूसरे मंदिर का निर्माण किया, but he also built pagan temples. लेकिन उसने दूसरे जो है देवी देवताओं के लिए भी जो मंदिर खड़े किए। He wanted the name and fame for himself. ये सब करने से वो ये चाहता था कि खुद को वो मशहूर करे। He even killed his wife. उसने अपनी खुद की पत्नी को मार डाला, He killed his 3 sons. अपने 3 जो लड़कों को मार डाला। And the other 3 sons that were there, और when King Herod died, the Rome had divided the places between the 3 sons. और जो है हम देखते हैं जब रोम ने जो है क्षेत्रों को जो बांट दिया उसके दूसरे जो 3 जो बेटों को, तो उनको भी उसने नहीं छोड़ा। They were also called Herod. उनको भी जो है वो शीर्षक दिया गया था कि ये भी हेरोद जैसे। And who Jesus was brought to at crucifixion time was Herod Antipas, the son of Herod the Great. और ये हेरोद का जो एक राजा, वो 3 में से एक जो है उनमें से ही एक था जो यीशु मसीह को जब क्रूस पर डाला गया था तब का था। The line of Herod the Great comes from his ancestral was an Edomite. और जो है हेरोद का जो वंश था वो ईदम की ओर से, जो ईदम के जो वंशावली से आया। And the line of Jesus was coming from David, Davidic. उसी प्रकार से जैसे यीशु मसीह का जो वंशावली जो है वो दाऊद से आया। So he was aware by old time prophetic words that there would arise a king. और इसीलिए जो है ये हम क्यों आपको बता रहे, क्योंकि ये सब चीजों की वजह से जो हेरोद जानता था कि भविष्यवाणियों के हिसाब से यीशु मसीह का जो है जो जन्म होने वाला था, जो मसीहा का जन्म होने वाला था इस वंशावली से जो है आते हुए उसी समय के आसपास। Now the wise men from the east came to Jerusalem, it says. और इसलिए जो लिखा गया है यहाँ पर जो बुद्धिमान पुरुष जो पूरब से आए थे यीशु को देखने। Now these wise men were not ordinary people. ये बुद्धिमान पुरुष जो है साधारण लोग नहीं थे। They were very, very influential.
उनका जो है बहुत ही जो पकड़ था राज्यों में। You know, when we are small, we say, "We three kings," that song is over there. But they were wise men, they were a group. हालांकि जो है दुनिया में जो गीत गाते हैं लोग कि 3 राजा थे जो यीशु को देखने आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 3 राजा नहीं थे, वो 3 महत्वपूर्ण बुद्धिमान पुरुष थे। They were wise men, a group of wise men. वो जो है बुद्धिमान पुरुष का एक समूह था जो आए थे यहाँ पर, वो तारा का पीछा करते करते यीशु को देखने। But who are these wise men? They were king makers. लेकिन ये जो है उनको इतना महत्व फिर क्यों दिया गया है? क्योंकि ये बुद्धिमान पुरुष जो है राजाओं को जो है राजाओं का निर्माण होते देखते थे। If they said that king shouldn't be there, the king would be removed. If they said the king should be there, the king would be set up. That much powerful they were. ये बुद्धिमान पुरुष का जो है वो जो भी कहते थे उसमें बहुत ही मूल्य था, क्योंकि उनके कहने के अनुसार राजाओं को सिंहासन पर बिठाया जाता था और निकाला भी जाता था। And Herod the Great, the king, he knew that these wise men were very, very influential to the emperor. They could even remove an emperor. That much powerful their words were. इसलिए हेरोड जो जुदिया का राजा था, जब उसने सुना कि ये बुद्धिमान पुरुष पूरब से आए हैं, तो वो जानते थे कि ये बुद्धिमान पुरुष जो मसीहा को ढूंढते हुए जा रहे हैं, ये ही लोग हैं जो राजाओं को बिठाते थे और वो किसी भी राजा को निकाल भी सकते थे सिंहासन पर से, चाहे वो जो है कोई भी हो। And these men knew that a king was going to be born. और अब यही बुद्धिमान पुरुष जो है हेरोड के पास आए हैं और ये संदेशा आया है कि ये लोग एक राजा का जन्म हुआ है, ये कह रहे हैं और उसको ढूंढते हुए है, इसलिए हेरोड परेशान हुआ। That's why they were studying the things of the signs of the heavens. क्योंकि ये बुद्धिमान पुरुष जो है स्वर्ग का जो तारा है, वो सबका जो है शिक्षण कर रहे थे, अध्ययन करते थे। They were understanding who was born at what particular time. और तारों के जो है शिक्षण से वो समझ जाते थे कि कौन से राजा का जन्म कब होता है। That's why it says, "We have seen his star in the east and have come to worship him." और इसलिए वो बुद्धिमान पुरुष जो है कहते थे, क्या उन्होंने हेरोद से कहा कि हमने इस राजा का जन्म जिसका हुआ है उसका तारा हमने देखा है और इसलिए हम आए हैं उसकी खोज में। My message today is facing the enemy. आज का शीर्षक है शत्रु का सामना करना। It is based on Matthew chapter 2 verse 3. मत्ती 2 अध्याय और 3 वचन में खास इसका जिक्र है। It says, "When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him." और इसलिए लिखा है 3 वचन में कि जब हेरोद राजा ने सुना इस बात को कि मसीहा का जन्म हुआ है, राजा का जन्म हुआ है, तो बहुत ही परेशान हुआ और पूरा यरूशलेम उसके साथ। We understand that King Herod was troubled because there was a competitive person that was being born. हेरोद क्यों परेशान हुआ? जब वो खुद राजा है, वो परेशान हुआ क्योंकि उसने सुना बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा कि एक राजा का जन्म हुआ है। But why all Jerusalem was also troubled? Because they were anyway waiting for a Messiah. लेकिन पूरा यरूशलेम हेरोद के साथ परेशान क्यों हुआ था? क्योंकि पूरा यरूशलेम भी मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे बहुत सालों से। So there was a difference between Herod getting troubled, a reason, and the people in Jerusalem getting troubled. और इसीलिए हेरोद अलग कारण से परेशान था और यरूशलेम अलग कारण से परेशान था। Because when Herod was such a fanatic, when he was troubled, he would keep killing people. क्योंकि पूरा यरूशलेम जानता था इस बात को कि जब हेरोद परेशान होता था तो वो हर किसी को जो मारने के लिए, जो मार डालने के लिए पीछे नहीं हटता था, इसीलिए यरूशलेम परेशान था। Because when they also came to know that the wise men had come and Herod was troubled, that means Jerusalem knew there was going to be trouble in Jerusalem because Herod was very, very violent. और इसीलिए जो है यरूशलेम के लोगों को जब पता चला कि ये बुद्धिमान पुरुष आए हैं और ऐसा हुआ है, एक राजा का जन्म हुआ है, मतलब कि अब उनके मन में ये सोच आया कि अब हेरोद जो है
कोई ना कोई जो बात करेगा ही यहाँ पर जो है, क्योंकि वो उसके लिए मशहूर था कि वो हर किसी को जो मार डालता था। और अब ये राजा का जन्म हुआ है तो अब वो हेरोड फिर से कुछ ना कुछ जरूर करेगा, Because they were troubled that whenever he got violent, they would be killing somewhere. क्योंकि जब भी हेरोड का जो है उसको गुस्सा आता था तो वो हमेशा किसी न किसी को मार डाल ही देता था। And later on, you see that the same Herod, he gathered the chief priests and scribes together and inquired where the Christ was to be born. और इसलिए फिर चौथे वचन में लिखा गया है, उसने अपने सारे जो है याजक थे उन सबको जो है बुलाकर उसने उनको पूछा कि ये मसीहा कहाँ पर उसका जन्म होने वाला है। And he got the answer that in Bethlehem of Judea, for thus was written by the prophet. और उन्होंने जवाब दिया कि शास्त्रों के हिसाब से जो है बेथलेहम के शहर में उसका जन्म होना है। That means there is a king coming out. इसका मतलब एक राजा का जन्म बेथलेहम में होने वाला है। That means there is a king of Israel, the king who's actually not going to be political, but a king with a different kingdom. लेकिन उन्होंने ये बात नहीं समझा कि जिस राजा का जन्म बेथलेहम में होने वाला है वो कोई जो है राजनैतिक राजा के हिसाब से राज्य करने के लिए नहीं आया है, वो दुनिया के उद्धार के लिए आया था। Whenever something is being birthed in your life by the kingdom of God, the kingdom of darkness will come against it. उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब भी किसी चीज का आत्मिक जन्म होने वाला है हमारे जीवनों में, तब जो है शत्रु जो है दूसरी ही कोशिश करता है ताकि वो जो परमेश्वर की ओर से होने वाला है वो न हो। जैसे कि हेरोड ने जो है कोशिश की ताकि यीशु मसीह का जन्म नहीं हो, वैसे ही शत्रु भी कोशिश करता है कि हमारे जीवनों में आत्मिक चीजों का जन्म न हो। There will be a spiritual attack against you. और इसीलिए आत्मिक आक्रमण शत्रु की ओर से होता रहता है हमारे ऊपर। There will be a ploy to terminate the plans of God which is for you. और इसलिए वो कोशिश करता है कि वो रणनीति बनाता है जो है आपके विरोध में, ताकि जो है जो आशीष आपको पाना है वो न आपको मिले। We must understand the calling of God in our lives. और इसके लिए पहले हमें हमारे खुद के जीवन के लिए हमारी जो बुलाहट दी गई है उसको समझना जरूरी है। He was frightened of that child that was being born. हेरोड राजा जो घबरा गया था उस छोटे से शिशु से जो राजा होकर जन्म लिया। That's why he killed later all the babies that were under 2 years of age. और उसी डर की वजह से उसने 2 साल और 2 साल के नीचे के सारे शिशुओं को मार डाला बेथलेहम में। And today in history it is known as the massacre of innocents. और आज के दिन में जो है ये मशहूर हुआ है कि उन दिनों का ये जो है सबसे जो है भयानक जो है हत्या का समय था, हत्या करने का समय He था। wanted to get rid of Jesus anyhow. उसने हेरोड ने वो सारे शिशुओं को मार डाला क्योंकि वो कोशिश कर रहा था इस चीज के लिए कि ये मसीहा जिसने जन्म लिया है वो भी इसमें मारा जाए। By even building the temple the second time, he considered himself as the king of the Jew. और उसने क्योंकि जो मंदिर को बनाया था इसलिए उसने सोचा कि वो खुद जो है यहूदियों का जो है राजा जो है बहुत ही जो बड़ा राजा हो गया है, मशहूर राजा हो गया है। But the Jews never liked him. लेकिन यहूदी लोग हेरोड को पसंद नहीं करते थे, वो जानते थे कि वो कैसा है। So this is the history behind the birth of Jesus. तो ये है जो थोड़ा सा इतिहास यीशु के जन्म के समय के बारे में। So we need to understand attacks will always come. तो हमें समझना है, जैसे हमने अभी इतिहास को देखा कि शत्रु की ओर से आक्रमण हमेशा होगा। Jesus came with a plan. लेकिन यीशु एक योजना के अनुसार भी आए थे। He was given a blueprint to be carried out on earth. यीशु मसीह के हाथों में एक जो रणनीति थी जो उसे पूरा करना था इस धरती पर। He was supposed to bring the message of the kingdom of God on earth. परमेश्वर के राज्य के बारे में संदेश यीशु लेकर आए थे इस धरती के लोगों के लिए। And Jesus did it and he finished it. और यीशु ने अपनी बुलाहट को अच्छी रीति से पूरा किया। But the enemy from the very start wanted to abort the plan of God. लेकिन शत्रु यीशु के
जीवन से जुड़ी हुई हर योजना को पूरा न करने के लिए पूरी कोशिश की शत्रु ने। King Herod the Great was influenced by the demonic. क्योंकि हेरोद राजा को भी जो है इस जो भी उसने किया उसके पीछे शैतान का हाथ था। We must understand, in any calling of your life, where God has given you a call, the enemy will try to come and abort it. और उसी प्रकार से जैसे यीशु की बुलाहट को पूरा न करने के लिए जो है वो पूरा न हो, इसकी पूरी कोशिश शैतान ने किया, वैसे ही हम सबके जीवन में भी जो बुलाहट है वो पूरा न हो, इसके लिए भी शैतान पूरी कोशिश करता रहता है। So we need to know what is our calling in God. तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि परमेश्वर ने हमारे खुद के जीवनों के लिए क्या बुलाहट दिया। The one part is the calling of God will never contradict scripture. सबसे पहले तो जो बुलाहट परमेश्वर ने हम सबको दिया है वो जो वचन के विरोध में कभी नहीं होगा, ये जान लेना है सबसे पहले। So we need to understand the calling of God, it stays within the framework of God's plan. क्योंकि हमारे जीवन में जो बुलाहट दिया गया है परमेश्वर की योजना से मिलता जुलता होगा हमेशा। So we need to understand here that God is at work in our lives. जान लेना है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करने की योजना बनाने के साथ साथ हमारे जीवन में सारे कार्यों के नियंत्रण में है। So in the call of God, God puts His plan and He puts the potential right into our spirit being. और इस बुलाहट को पूरा करने के लिए जो हमारे जीवनों के लिए है उसको पूरा करने के लिए सारी चीजों की जो जरूरत हमको पड़ेगी वो परमेश्वर ने हमारे अंदर उसकी क्षमता डाल दी है। Many a times we try to fight the enemy with our own strength. लेकिन हम बहुत से बार हमारी खुद की शक्ति से शत्रु का सामना करते हैं। Apostle Paul is saying, for the weapons of our warfare are not carnal. 2 कुरिन्थियों में लिखा गया है कि हमारे युद्ध का आत्मिक युद्ध का शस्त्र जो है दुनिया के शस्त्र की तरह नहीं है, But they are mighty in God for pulling down strongholds. लेकिन वो परमेश्वर में बहुत ही शक्तिशाली है ताकि दुष्ट गढ़ों को नीचे गिरा सके। See, when you have the calling of God upon your life, God has placed a potential. He has placed the armor. He has placed the hedge or a hedge of fire around you. हमें जान लेना है कि हम सबके बुलाहट के लिए परमेश्वर ने हमारे अंदर वो शस्त्र डाला है जिससे हम शत्रु पर आक्रमण करके उस पर विजय हासिल कर सकते हैं। See, King Herod was there. He had to actually protect the babies, not kill the babies. हेरोद क्योंकि जो है राजा था, हेरोद की जिम्मेदारी थी कि शिशुओं का वो सुरक्षा करे, उल्टा उसने उनको मार डाला। Every king protects its citizens. क्योंकि हर राजा का जिम्मेदारी होता है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। But here he killed innocent children below the age of 2. हेरोद ऐसा नहीं था, उसने उसका उल्टा किया। 2 साल से छोटे सारे शिशुओं को उसने मार डाला, उसका उल्टा किया। जो उसकी जिम्मेदारी थी वो उसने नहीं किया। Because he wanted to stay king. He wanted his generation to stay as kings. क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि वो चाहता था कि वो खुद हमेशा राजा बना रहे। But God makes all things beautiful in His time. लेकिन परमेश्वर सारी चीजों को अच्छा करता है हमारे लिए। That's why when God calls you, He gives you weapons that are not carnal, but mighty in God for pulling down of strongholds. और इस बात से हम आश्वासन पाते हैं कि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक ऐसे शस्त्र दिए हैं परमेश्वर में जो सारे दुष्ट मजबूत गढ़ों को भी नीचे गिराने की क्षमता रखता है। There are demonic influences that come through thought life. क्योंकि जो है शैतान का आक्रमण जो है हमारे जो मनो के सोच में भी होता है। We think that the enemy is always inside, but sometimes the enemy is always outside. Sorry, the enemy is also inside. हम हमेशा जो है ये ध्यान में रखते हैं कि शत्रु बाहर से कार्य करता है हमारे ऊपर, लेकिन जो है बहुत से बार शत्रु अंदर से भी कार्य करता है हमारे विरोध। There are wolves in sheep's clothing. क्योंकि ऐसे भेड़िया है जो भेड़ का जो वस्त्र पहने हुए। It doesn't say wolves in shepherd's clothing. It says wolves in sheep's clothing. ये जो है लिखा नहीं है कि जो भेड़िया है वो जो है चरवाह के जो भेष में है, वो लिखा है कि भेड़िया जो है भेड़ के भेष में है। That's why it says in verse 5, casting down arguments and every high thing that exalts itself.
और इसीलिए जो है वो सारे मजबूत गढ़ों को हम नीचे गिरा सकते हैं। सारी जो चीजें जो खुद को हमेशा उठाते रहती है परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठाते रहते हैं, ये सारे दुष्ट चीजों को नीचे गिराने की क्षमता हमारे अंदर दी गई है। Many a time we allow the enemy to speak into our life. We open the doors and so that those thoughts of the enemy comes as arrows into our minds. लेकिन बहुत बार हम इसमें चूक जाते हैं और शैतान जो गलत सोच हमारे मन में डालता है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं और जो है उसके अनुसार चलते हैं। And that's why it says it's to bring every thought into captivity to the obedience of Christ. इसलिए आगे लिखा गया है कि हमें हमारे हर सोच को जो है यीशु मसीह के नियंत्रण के नीचे लेकर आना चाहिए। In the calling of God, God will empower us how to reject the things of the enemy. और हमारी बुलाहट देने के साथ साथ परमेश्वर हमें जो है सारी बुद्धिमान जो है जो बुद्धि भी देता है ताकि हम किस प्रकार से शत्रु का सामना कर सकते हैं जिससे जीत हमारी हो। It says later in verse 6, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. 2 Corinthians 10:6. और इसकी तैयारी में हमेशा हो कि अनाज्ञाकारी को दंड दे और जो है जो आज्ञा का पालन करते हैं वो सारी चीजों का जो है परिपूर्णता से कार्यों संपूर्ण हो। King Saul was after King David's life. हालांकि जो है उसी प्रकार से जैसे शाऊल दाऊद के विरोध में था, But David knew what he had to do. We'll come to that at a later stage. शाऊल ने जो भी किया दाऊद के विरोध में, उसके बावजूद दाऊद जानता था कि उसको क्या करना है। So when under attack, we need to take refuge in the Lord. दाऊद की तरह ही जब भी हमारे ऊपर भी आक्रमण हो तो हमें अपना शरण प्रभु में ढूंढ लेना चाहिए। David knew the Lord is my shepherd, I shall not want. दाऊद ने ये कहा वचन में कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, इसलिए किसी चीज की कमी घटी मुझे नहीं होगी। That's why when you have a calling, get ready that there will be image assassination. और ये भी जान लेना है कि जब भी, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से बुलाहट है, इसीलिए जो है हमारे चरित्र का जो है चरित्र को खराब, चरित्र के जो हमारी छवि को खराब करने की जो है शैतान पूरी कोशिश करेगा। उससे जो है उसकी सारी कोशिशों को नाकामयाब भी करना है और जो है हमारी बुलाहट को भी पूरा करना है। इसके लिए प्रभु से हमें जो सहायता मांगनी है। See, God's calling for us will always draw us closer to Him, not take us away. परमेश्वर की बुलाहट हमें परमेश्वर के और करीब हमेशा लेकर जाएगा। So it will never contradict Scripture, as I said earlier. और इसीलिए हमारी बुलाहट कभी भी वचन के जो है आज्ञाओं के विरोध में कभी नहीं जाएगा। The calling of God will always be accompanied with peace. परमेश्वर की बुलाहट के साथ साथ परमेश्वर का शांति हमारे अंदर हम महसूस करेंगे। The enemy will always come to rob you of your peace. और इसीलिए हम देखते हैं शत्रु हमेशा इस कोशिश में है कि हमारे शांति को हमसे छीन Jesus said, "Peace I have come to give you. I will leave peace with you." He has left His peace. जैसे यीशु ने कहा कि मैं स्वर्गीय शांति तुम्हें देने आया हूँ। There are sometimes God will ask us for something very big to do, very scary at times. कभी कभी परमेश्वर हमसे ऐसी चीजों की मांग करते हैं जो करना शायद हमारे लिए मुश्किल हो, ऐसा हो सकता है। We may be feeling very afraid when God tells us to do something. या फिर जब परमेश्वर हमसे कुछ कहते हैं तो करने के लिए शायद हम कभी कभी जो डर जाते हैं। But our fears will be met by God's overwhelming grace. लेकिन हमारे सारे डर के ऊपर हम विजयी होंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। There will be a strength that will come within you to arise and shine. क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो जो बल हमारे अंदर आएगा जिससे हम उठ खड़े होकर चमक सकते हैं। In the calling of God, the peace of God will be upon your life. क्योंकि बुलाहट में जो है परमेश्वर की शांति हमारे हृदय के ऊपर राज्य करता है जिससे जो है हम विजय का रास्ते पर चलते हैं। In spite of all accusation of all things said against you, God will still continue to give us peace. और चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी कहे, उसके बावजूद परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिल में तुम हमेशा महसूस करोगे। God will never tell us to do something without giving us the power and giving us the strength to overcome it.
और परमेश्वर जो है ऐसा कुछ भी नहीं कर जो है हमसे अपेक्षा करेगा जो है जिसको करने की ताकत हम में ना हो। So we need to understand here that God, when He gives a calling, He speaks to us the roadmap of it. और जब परमेश्वर हमें बुलाहट दिया है तो उसको पूरा करने का जो रास्ता भी वो हमें दिखाएगा। So what do we know? How to combat the enemy's lies? तो शैतान के झूठ का सामना हम कैसे करें? How do we face the enemy? शैतान का सामना हमें कैसे करना है? There was King Herod. उसी प्रकार से जैसे हेरोद राजा था, He had told the wise men, when you go there, come and tell me. राजा हेरोद ने बुद्धिमान पुरुषों को कहा कि जब तुम इस राजा को ढूंढ निकालोगे तो आकर मुझे जो बताना कि वो कहाँ पर है। So that I can also go and worship. Do you think Herod wanted to really worship Jesus? हेरोद ने बुद्धिमान पुरुषों से कहा कि जब तुम राजा को ढूंढ लोगे कि उसका जन्म कहाँ हुआ, आकर मुझे बताना ताकि मैं भी तुम्हारी तरह जाकर आराधना कर सकूं। He was trying to trick the wise men. लेकिन वो सच में जो है उस राजा का आराधना नहीं करना चाहता था। वो बुद्धिमान पुरुषों का इस्तेमाल कर रहा था ताकि जो है वो उस जो है जिस राजा ने जन्म लिया है उस राजा को वो खत्म कर सके। वो हेरोद का उद्देश्य था, उसका उद्देश्य यीशु की आराधना करना नहीं था। It shows that King Herod was a false worshipper. वो झूठा आराधक था। He just wanted to show it was a make-up, it was a pretense. हेरोद राजा सिर्फ जो है एक्टिंग कर रहा था कि वो आराधना करना चाहता था, असल में वो आराधना नहीं करना चाहता था, उसको खत्म करना चाहता था। There is a lot of pretense within also. वैसे ही जो है हम देखते हैं हमारे अंदरूनी क्षेत्र में भी ऐसे लोग होंगे जो इसी प्रकार से करते हैं। The enemy wants to stop us, so he uses those weak and frail Christians at times. और कई बार जो है जो मसीही लोग कमजोर है ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है ताकि वो दूसरे लोगों को परेशान करे। Those who are not in God's word. जो लोग जो वचन के अनुसार जीते नहीं है उनका इस्तेमाल वो करता है दूसरे मजबूत मसीही लोगों का विरोध करता है। And that's why there is slander, there is gossip, there is so many kind of evil tales that go out. और इसलिए कई बार हम देखते हैं कि मसीह लोगों के बीच में भी जो है अनबन होती है, विरोध होता है और गलत चीजें होती है क्योंकि ये सारे काम शत्रु करता है। There was a time when Jesus was doing all sorts of miracles, and there was a time that many had left him also, the Bible states. और इसीलिए जो है बाइबल में भी लिखा गया है कि हालांकि यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए जब वो धरती पर थे, उसने चंगाइयां दी, छुटकारे दिए, लेकिन कई बार उसके बावजूद यीशु को भी विरोध का सामना करना पड़ा था, उसका नाम भी जो है खराब करने की कोशिश की गई थी। That's why when you are under attack, we need to come before God. और इसीलिए क्योंकि आक्रमण आएगा, इसीलिए आक्रमण का सामना करने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना ही है We need मदद के लिए, to take refuge in the Lord. क्योंकि हमारा शरण स्थान हमारा परमेश्वर ही है। Jesus himself says, "Come to me, all you labor and heavy laden, and I will give you rest." यीशु ने खुद कहा कि बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा। Many a time we think because of only certain problems we have to go to Him. हम सोचते हैं कि कभी बड़ी परेशानी आई तो ही हम परमेश्वर के पास जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं। He says that take my yoke upon you and learn from me. यीशु ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर लेकर मुझसे सीखो, And for I am gentle and lowly, and you will find rest for your souls. क्योंकि मैं नम्रता से जो है तुम्हें चीजें सिखाऊंगा और आपके प्राणों को आप आराम दोगे। My yoke is easy and my burden is light. क्योंकि मेरा जुआ जो है आसान है और मेरा बोझ जो है हल्का है। These are the words of Jesus. ये सारी बातें कहीं सांत्वना देते हैं। These are the words of wisdom. ये बुद्धि के शब्द है। That's why we need to first take refuge in the Lord. Don't hit back. इसके अनुसार हमें अपना शरण प्रभु में जो पाना है, दूसरों का जो है विरोध में जो है चीजें नहीं कहनी। See, you know what is spoiling someone's image? किसी का छवि खराब करने का मतलब क्या है? Suppose you have a photograph of someone. अगर उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास किसी का चित्र है, You take a red pen and you put some markings. तो आप अगर एक लाल कलर का जो मार्कर लेते हो और उस चित्र पर जो है आप जो खराब करते हो
उस चित्र को। You take another blue color, you take a black color, and you distort the image. और फिर एक जो काला मार्कर लेते हो, एक नीला मार्कर लेते हो और पूरा उस चित्र को आप पूरी रीति से खराब करते हो, उसके ऊपर जो मार्किंग करके। Especially if that person is in the image of God. खास करके अगर वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के स्वरूप में जो है मसीही हो, You are distorting the image. तो आप परमेश्वर के उस छवि को, परमेश्वर के उस व्यक्तित्व को जो है, जो उस व्यक्ति में है, उसको आप खराब कर रहे हो। Today within the body of Christ there are people that distort people's image. आजकल हम देखते हैं मसीह के देह के अंदर भी लोग आपस में ऐसा करते हैं और इससे यीशु मसीह का जो है, जो राज्य का चित्र जो है, आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। That's why we need to come to God who is refuge. और ऐसा जो है शत्रु की कोशिशों की वजह से हमें अपना शरण प्रभु में पाना है। If someone spoils your image, do not go to spoil the other person's image. You're doing the same thing. और इसलिए अगर कोई आपकी छवि को खराब करने की कोशिश में है तो आप बदले में उसको कुछ नहीं कहो, क्योंकि अगर आप कुछ कहोगे उनको तो आप भी वही करोगे। When under demonic attack, we need to submit to God. जब शत्रु से किसी भी प्रकार का आक्रमण अगर होता है हमारे जीवन में, जब भी होता है, तो हमें अपना शरण प्रभु में ही पाना बुद्धिमानी का। Then resist the devil and he will flee. प्रभु में शरण पाने के बाद शत्रु का सामना करो और वो भाग जाएगा। When certain things like these happen, we try to resist the enemy. लेकिन And we fight with flesh and blood. जब विरोध में कुछ अगर होता है तो हम तुरंत उस व्यक्ति को कुछ कहते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर जो आक्रमण है वो शैतान की ओर से है, वो मनुष्य की ओर से नहीं, वो शैतान और मनुष्य के द्वारा हालांकि वो चीजें करने की कोशिश करता है। So the calling of God is upon their life. The enemy will try to come and strike you at any time, but God's armor, God's covering, God's hedge is always around you. लेकिन चाहे शत्रु कितना भी कोशिश करे, आप पर कितने भी जो है दुष्ट तीर छोड़े, उसके बावजूद आपको जो है हानि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो बुलाहट दिया है उसकी वजह से तुम्हारी सुरक्षा और सारी चीजों की उपलब्धि जिसकी जरूरत तुम्हें है, वो भी सारी चीजें परमेश्वर तुम्हारे लिए ठहराएगा और रखेगा। That's why in Psalm 5, David, he makes God his refuge. He makes God his strength. He was under attack. और इसीलिए जब दाऊद के जीवन के ऊपर आक्रमण का बौछार था, उसके बावजूद दाऊद ने अपना शरण प्रभु में हमेशा पाया। There were lies. His image was distorted. हालांकि जो है झूठ चारों तरफ फैलाई गई थी दाऊद के बारे में, लेकिन जो है दाऊद ने जो है वो शांत रहा। You know what is the spirit of Leviathan? लेवायथन का ये जो आत्मा क्या है आपको पता है? This particular spirit will always come against the ministry and the body of Christ and the servants of God. लेवायथन का जो आत्मा जो शत्रु की ओर से है, ये आत्मा जो है हमेशा परमेश्वर के दासों के विरोध में, परमेश्वर की सेवा सच में जो करते हैं उनके विरोध में आता है ताकि वो उनको रोक सके। It's trying to stop the pace of the ministry of the church. और कलीसिया के सारे सेवकाइयों को धीमा करने के लिए जो है वो कोशिश करता है। And the enemy learns people so well that he tries to work through their lives. और शत्रु हर मनुष्य को इतने अच्छे से अध्ययन करता है कि वो उनके जीवन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ताकि वो दूसरों के विरोध आ सके। That's why we shouldn't judge someone. We need to just look at our own lives. और इसीलिए हमें एक दूसरे का जो है न्याय नहीं करना है, लेकिन हमें हमेशा खुद को जांचते हुए खुद को सही रखना जरूरी है। Many a time we say God is the supreme judge, but we go and judge someone else. बहुत बार हम कहते हैं कि परमेश्वर न्याय करेगा, लेकिन कई बार हम भी न्याय करते हैं। See, a calling of God that God has put upon your life is always accompanied with confirmation. और हमेशा जो है जो बुलाहट परमेश्वर ने जो दिया है
उसका जो है और ज्यादा जो है आश्वासन प्रभु ही हमें देता है। God will bring situation in your lives to see how you can handle it. और उस बुलाहट को पूरा करने से पहले जो है वो ऐसे परिस्थितियों को हमारे जीवन में लेकर आता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि ऐसे परिस्थितियों में हम क्या करेंगे। Let us not give any loophole to the enemy. और किसी भी परिस्थिति के द्वारा हमें शत्रु को किसी भी प्रकार का मौका नहीं देना है। In facing the enemy, we need God. We need His wisdom. We need His word. क्योंकि शत्रु का सामना करने के लिए, शत्रु को हराने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की ओर से जो बल की जरूरत होती है। Don't fight with anybody. You will be wasting your time. और अगर हम एक दूसरे के विरोध में जाएंगे मनुष्यता में जो है, तो हम गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा असली शत्रु तो शैतान है। Don't try to justify and argue with people or reason with people. Just leave it. Just submit everything in the hands of God. और इसीलिए जब कोई तुम्हारे विरोध आता है, तुम्हारे बारे में बुरा कहता है या तुम्हारे विरोध में जो है चीजें, गलत चीजें फैलाता है, उसके सारी चीजें करने के बावजूद आप शांत रहो और सारी चीजें परमेश्वर के हवाले करो। Now I understand why the wise men never came back to King Herod. और जो है इसीलिए जो है इस कारण से हम देखते हैं कि जो है जो बुद्धिमान पुरुष जो है वापस हेरोड के पास गए ही नहीं राजा को देखने के बाद। Because they worshipped Jesus and they were warned in a dream to go back in a separate way, and that's why they are wise. They never went to King Herod. They went back to their own country. और इसलिए हम देखते हैं बुद्धिमान पुरुष जो यीशु राजा को मिलने गए थे, जब वो गए और वो यीशु राजा से मिले, तब जो है हम देखते हैं स्वप्न में उनको जो है चेतावनी दी गई थी ताकि वो हेरोड राजा के पास वापस न जाए, और उन्होंने जो है परमेश्वर के निर्देशन के अनुसार किया और वो हेरोड राजा के पास वापस नहीं गए। They had a focus. They had to come to the following the star to meet the one who is born king. और उन्होंने जिस उद्देश्य से वो वहां पर हेरोड राजा के पास आए थे, ये ढूंढते हुए कि जो राजा का जन्म हुआ था वो कहाँ था, वो उद्देश्य पूरा हुआ। उसके बाद जो है वो वापस हेरोड राजा के पास नहीं गए, लेकिन वो अपने अपने घर वापस चले। They were not supposed to carry tales back to Herod as Herod had commanded. और परमेश्वर ने उनको निर्देशन दिया कि वो हेरोड राजा के पास न जाए। हालांकि हेरोड राजा ने उनको कहा था कि आकर मुझे बताना, लेकिन बुद्धिमान पुरुष ने जो है नहीं गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो है आगे जो है किसी भी बात का जो है जो गलत चीजें हो, इसीलिए उन्होंने वो अपने अपने घर वापस गए। That's why in the calling, whenever something is birthed in your spirit man, God wants to do a perfect work in your life. और इसीलिए जो है जब कभी भी आत्मिक चीजें परमेश्वर जो है आपके जीवन में करने के लिए जा रहा होता है, तो हमेशा ये सारे नकारात्मक बातों से जो है चौकन्ने रहना। Don't get into squabbles. और अगर कुछ हो भी गया हो को झगड़े में नहीं पड़ना। We need to act very diligently. हमें बहुत ही जो है सोच समझकर अपना जीवन जीना जरूरी है। We need to be fervent in prayer. और उसके लिए प्रार्थना निरंतर करना है। See, the important thing here, you need to be focused. In the calling, you need to be focused. हमें ध्यान में रखना है कि हमारे जीवनों के लिए जो भी परमेश्वर ने बुलाहट दिया है, हमारा ध्यान वो बुलाहट को पूरा करने में ही आप लगाओ, बाकी चीजों पर नहीं। You know, King Herod, he wanted to remove the focus that the wise men were going to worship. The wise men were looking, he wanted to just put in their minds, something else regarding the king. हम देखते हैं हेरोड राजा जो है बुद्धिमान पुरुषों के जो है मन में कुछ और जो है नकारात्मक बात जो है डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो है बुद्धिमान पुरुष जो है वो बुद्धिमान है, उन्होंने स्वप्न के अनुसार जो है अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद जो है वो वहां से निकल गए, क्योंकि वो हेरोड के साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहते थे। If they knew so much about the star, do you think that they had no information how Herod was? क्योंकि जो है ये बुद्धिमान पुरुष, वो बुद्धिमान लोग थे, क्या वो नहीं जानते थे कि हेरोड का स्वभाव कैसा है और वो क्या क्या कर सकता है? Many a times we believe anybody and anything.
लेकिन कई बार हम किसी के भी कहने की बातों को हम जो मान लेते हैं, उन्होंने कहा तो ठीक है हमने मान लिया, बहुत बार ये गलती लोग करते हैं। But in the calling, let us be like the wise men. लेकिन हमारी बुलाहट को पूरा करने की प्रक्रिया में बुद्धिमान पुरुषों की तरह हमें होना है, चौकन्ने होना है। They were focused on the star and reaching there and reaching to the place where they need to worship. उन्होंने अपना ध्यान उस तारे के ऊपर रखा और परमेश्वर यीशु मसीह का राजा होने के वजह से उसकी आराधना करने पर उन्होंने अपना ध्यान दिया। That's why when you're hearing something of someone, look whether how spiritual they are. और इसीलिए अगर कोई कुछ आपसे कहता भी है तो ये देखो कि उनका आत्मिक स्थिति कैसा है। See if they are worshippers. देखो कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं क्या वो खुद परमेश्वर के सच्चे आराधक है। Check where they are and pray in the word of God. जांचो कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़कर वचन के अनुसार जीते हैं क्या। We need to wear our scales today. जो भी चीजें होती है उनको जांचना आज के दिनों में खास करके बहुत जरूरी है। So God has called you into His kingdom for purpose. तो ये ध्यान में हमेशा रखो कि एक उद्देश्य के से परमेश्वर ने वो बुलाहट आपको दिया है। A calling from God will always result in Him being glorified. और हर बुलाहट को पूरा होने पर परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। The wise men were called to fulfill prophecy. जैसे बुद्धिमान पुरुषों को बुलाया गया था जो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। They were called to do what they had to do at that particular time. और वो समय में बुद्धिमान पुरुषों को जो करना था वो उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। You know, in the calling of God, there is a blessing, but there are enough trials and challenges that we will face. परमेश्वर ने जो बुलाहट हम सबको दिया है उसको जो है पूरा करने के लिए चुनौतियां जो है आएंगी हमारे विरोध में, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें कितना भी रोकने की कोशिश करे शत्रु, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम अपनी बुलाहट पर ध्यान देते हुए उसको पूरा करें। Throughout the life journey of Jesus, Jesus faced things from within. और यीशु मसीह ने भी खुद ऐसे काफी संघर्षों का सामना किया। It was the Pharisees, it was the scribes who came against him. फरीसी लोग और जो याजक लोग भी उस यीशु के सेवकाई के विरोध आते रहते थे। They picked up stones to throw at him. उन्हें पत्थरों को भी उठाया यीशु को मारने के लिए। Doesn't mean that Jesus and the disciples also will pick up some stones. तो जरूरी नहीं कि जो है क्योंकि लोग पत्थर उठाते हैं तो इसलिए यीशु के शिष्य भी क्या पत्थर उठाएंगे यीशु को मारने के लिए। In the Garden of Gethsemane, the soldiers came to arrest him. गेत्सेमनी के बगीचे में जो सैनिक आए थे यीशु को जो बंदी बनाने के लिए। And the Bible states that Jesus is saying, I was there open, that time you did not come. Why did you come in the night to do such a thing like this? ऐसा जब हुआ था तब यीशु ने उन सैनिकों को कहा कि तुम मुझे जो है इस प्रकार से जो पकड़ने के लिए क्यों आए हो। मैं इतना जो है खुला था, हमेशा यहाँ वहाँ जाता था, चाहे तो आप कभी भी मुझे जो बंदी बना सकते थे, लेकिन अब जो समय है ऐसा होने के लिए तो शांति से होने दो, क्यों तुम इस प्रकार से आए हो। And when Peter cut off that soldier's ear, और जब पतरस ने एक सैनिक का कान जो काटा था, Jesus told him to put his sword away. तो यीशु ने पतरस को डांटा और उसने कहा कि अपने तलवार को जो है अंदर रखो। And he healed that soldier. और वो सैनिक के कान को भी चंगाई दिया। This is not how we react. जो है इस प्रकार से जो हमें नहीं करना है। The problem today is we are reacting in wrong ways. इसी प्रकार से जो है जैसे पतरस ने गुस्से में किया वैसे ही हम भी काफी बार करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। And that's why justice is delayed. अगर हम ऐसा करेंगे तो न्याय का आना देरी से आएगा। And that's why we are not climbing up the steps towards heaven. और ऐसा अगर होगा तो स्वर्ग की तरफ हम अपने कदमों को जो है धीरे धीरे से चढ़ेंगे। We are not progressing in the calling of God. और परमेश्वर के दिए गए बुलाहट में उस प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ेंगे। It's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Lord's spirit is in our hearts today. और इसलिए जो है वचन में लिखा गया है कि हम अपने बल से अपनी शक्ति से चीजों को परिपूर्ण नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर की मदद से उसकी बुलाहट को पूरी करते हैं। If something wrong is done, appeal to God who is the righteous judge.
और कोई जब आपका विरोध करता है, आपके विरोध में आपके साथ बुरा सलूक अगर करता है, बुरा सोच लेकर आपके विरोध में चीजें करता है, तो वो जो है समस्या परमेश्वर के हवाले समर्पण करो और प्रभु को कहो कि उसको संभालने के लिए। This is how David did it in Psalm 5. दाऊद ने यही किया भजन संहिता 5। He submitted, he appealed to God. He said, God, you are my maker. God, you do it. दाऊद ने सारे परेशानी की चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर कहा, प्रभु आप इसको संभाल लो। If you see verse 4 of Psalm 5, भजन संहिता 5वें अध्याय का 4वां वचन, he says, for you are not a God who takes pleasure in wickedness, क्योंकि आप परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है जो दुष्टता में आनंद होता है, nor shall evil dwell with you. और ना ही कोई दुष्टता आप में है प्रभु। He is bringing his appeal before God. देखते हैं यहाँ पर दाऊद जो है अपना समस्या परमेश्वर के सामने रख रहा है। He knew that he had a call of God upon his life. दाऊद जानता था कि उसके जीवन के लिए परमेश्वर ने बुलाहट दी थी। He knew the anointing of God was upon him. वो जानता था कि उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, But that did not mean that he would just go and just fight. लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो जस्ट ऐसे ही जाए और युद्ध करे। David knew that many of his victories, most of it came because he inquired of God. दाऊद इस बात से वाकिफ था कि उसके ज्यादा से ज्यादा जो विजयी थे वो परमेश्वर की मदद से थे। He says, the boastful shall not stand in your sight. और लिखा गया है कि जो खुद पे घमंड करते हैं वो परमेश्वर के निगाह में खड़े नहीं रह It सकते। says that you shall destroy those who speak falsehood. और जो गलत चीजों को कहता है, ऐसे जो गलत करते हैं, गलत चीजों को कहते हैं, ऐसे लोगों का विनाश परमेश्वर आप करते हैं। So when people speak wrong about you, you cannot stop everybody. You just have to bring it to God. और इसीलिए अगर लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करते हैं तो उनको जो है परमेश्वर के हवाले कर दो, परमेश्वर को चीजें करने दो। He says, but as for me, I will come into your house in the multitude of your mercy. दाऊद ने आगे कहा कि ये Hallelujah. सारी चीजें परमेश्वर मैं आपके हवाले करता हूँ और मैं खुद आपके उपस्थिति में आता हूँ तुम्हारी दया को मांगने के लिए। In fear of you, I will worship towards your holy temple. और तुम्हारे Hallelujah. प्रति जो भय मेरे हृदय में है उससे मैं तुम्हारी आराधना करने तुम्हारे मंदिर आऊंगा। Even though King Saul was after his life, he never treated King Saul as his enemy. और हम देखते हैं इसी वजह से, क्योंकि दाऊद ने अपना शरण प्रभु में पाया, हालांकि शाऊल ने बार बार दाऊद का विरोध किया, दाऊद का जो है दाऊद को मार डालने की कोशिश की, उसका नाम खराब किया, ये सब चीजें करने के बावजूद दाऊद ने शाऊल के ऊपर अपना हाथ नहीं रखा। That's why in facing the enemy or anything the enemy comes against us, we try to fight with our own strength. लेकिन जब लोग हमारे विरोध करते हैं तो हम अपने शक्ति से, अपने बल से जो है उसका उन लोगों के विरोध में जाते हैं। Let God arise, his enemies will be scattered. ऐसा नहीं करना है। हर परिस्थिति में परमेश्वर को लेकर आओ और फिर शत्रु खुद ब खुद भाग जाएगा। Later David says, his meaning was draw near to God by his grace. और फिर आगे लिखा है कि परमेश्वर के करीब आओ उसके अनुग्रह के वजह से। We need the grace of God. For that we need to be in his holy temple. और परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए हमें परमेश्वर के मंदिर में जाना है। By telling people our case does not become stronger. दूसरे लोगों को अपना समस्या बताने से हमारे लिए जो है कोई जो है जो फायदा नहीं होने वाला है। By speaking ill, the other person doesn't become weak in any case. और साथ ही साथ दूसरों की बुराई करने से वो लोग भी कमजोर नहीं होने वाले हैं। That's why we need to understand the plan of King Herod was to stop and abort the plan of God that was coming through Jesus. बात जो समझना जरूरी ये है आज कि हेरोड की तरह परमेश्वर की बुलाहट को रोकने की कोशिश हमेशा होती रहेगी, लेकिन परमेश्वर की मदद से हम इसमें विजयी होंगे। There is a spiritual birthing taking place in your lives. हमें ये समझना है कि हमारे जीवनों के लिए और आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने एक आत्मिक
जन्म को होने के लिए तय किया है। God is taking you to a higher ground. क्योंकि परमेश्वर आपको एक ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहता है। We need to say, God, I submit to you. और जब परमेश्वर इस कोशिश में है हमें उठाने के लिए, तो हमें उसके लिए खुद को परमेश्वर के हवाले समर्पण करना You है। may be under stress, you may be under pressure, you may be under so many things. You know, we got so many problems of our own, and then we hear other things, and then a lot of other things happen. हालांकि ये भी सच है कि दुनिया की ओर से बहुत सारे जो भार जो है बोझ हमारे ऊपर आता है हर तरफ से, हर चीजों को लेकर के, लेकिन जो है हम देखते हैं ये सारा बोझ के बावजूद जो है शत्रु भी जो है कोशिश करता है, दुनिया के बोझ के साथ साथ शत्रु भी कोशिश करता है कि दुष्ट बोझ भी हमारे ऊपर डालने के लिए, लेकिन हमें प्रभु में सुरक्षा पाना है। If you go ahead, what David is saying, for there is no faithfulness in their mouth. दाऊद कहता है कि शत्रु के मुंह में जो है कोई विश्वसनीयता नहीं है, Their inward part is a destruction. और उनके अंदरूनी जो मनुष्यता नाश के तार पर है। So he says, God, you pronounce them guilty. और यानी कि यहाँ पर जो है दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर आप उनके ऊपर न्याय करो, जो चीज वो कर रहे हैं उसके लिए। You give me justice. परमेश्वर आप न्याय मुझे दो। See, in the kingdom of God, man cannot give you justice. It is the king alone who can give justice. जब हम परमेश्वर के राज्य में जुड़े हुए हैं तो हमारे जीवन के लिए न्याय कौन लाएगा? परमेश्वर लाएगा। In my ending, but let all those who rejoice in you put their trust in you. और जो कोई भी आप में आनंदित होते हैं वो अपना विश्वास परमेश्वर आपके ऊपर रखे। Let them ever shout for joy because you defend them. और वो Hallelujah. हमेशा आनंदित हो क्योंकि आप हमेशा उनके लिए लड़ोगे। Let those also who love your name be joyful in you. और परमेश्वर जो कोई भी आपके नाम से प्रेम करते हैं वो अपना आनंद आप में पाए। Whatever you may be going through today, और इसीलिए आज चाहे आपकी परिस्थितियां जो भी हो, you love the name of the Lord. आप परमेश्वर के नाम से प्यार करो। You trust in the name of the Lord. यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो। Not in words, not in song, but in belief. सिर्फ शब्दों से नहीं, सिर्फ गीतों से नहीं, लेकिन अपने हृदय से पूरा विश्वास करते हैं। In conviction. पूरे दृढ़ता से आपको इस बात को जो मान लेना है। That's why he says, let those who love your name shout for और joy. इसीलिए जब ऐसा Hallelujah. होगा तो ऐसा होगा कि जो कोई भी यीशु के नाम से प्यार करता है सच में, वो लोग आनंदित हमेशा रहेंगे। In Psalm 5, David in that situation is going to so Lord, but he said, oh Lord, I know that you will bless the righteous. और इसीलिए हालांकि दाऊद इतने परेशानी से गुजर रहा है, उसके बावजूद दाऊद कहता है, हे प्रभु तू धार्मिकता में धन्य है। You know, sometimes, you know what is a lie? It is half truth and half false. That is also a lie. जब हम आधा झूठ और आधा सच कहते हैं तो वो भी झूठी कहलाती है। Only God knows truth. परमेश्वर सत्य को जानता है। And Governor Pilate saying, what is truth? और पिलातुस पूछता है यीशु से कि सच्चाई क्या है, And Jesus is asking it to Jesus. और वो यीशु से ही पूछ रहे हैं कि सत्य क्या है, When he does not know that the truth himself is before him. क्योंकि वो नहीं पहचान पा रहा था कि यीशु खुद सत्य है। Because there was so much accusations. क्यों वो नहीं पहचान पा रहा था? क्योंकि लोगों ने इतने सारे झूठे इल्जाम यीशु पर लगाए थे, इसलिए जो है पिलातुस नहीं पहचान पा रहा था कि यीशु सत्य है। See, the chief priests, the scribes and the whole of them, they had an agenda to get rid of Jesus. हालांकि सारे याजकों जो है यहूदियों के याजकों के उनमें से कुछ लोगों के जो मन में जो है गलत सोच था कि यीशु को किसी भी प्रकार से मार डालना है, उसकी कोशिश में थे। Because the people were following Jesus. क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु का पीछा कर रहे थे, इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। But they had a double agenda. लेकिन उनका जो है उद्देश्य ही अलग था यीशु के विरोध में। You know, one arrow kills two birds. जैसे कि एक तीर दो पक्षियों को जो मार डाले, इस कोशिश So में। that's why they brought Jesus before Pilate. और इसलिए उन्होंने यीशु को पिलातुस के सामने लाया था। Why? They were fed up of Pilate also. क्यों? क्योंकि वो जो है वो पिलातुस से भी थक गए थे। You may be hearing this for the first time. शायद आप
को ये जानकारी अभी मिल रहा हो। They wanted to get rid of Pilate also at the same time. वो चाहते थे कि यीशु को पिलातुस के सामने लाकर जो है दोनों की परीक्षा हो। See, the governors that were appointed by Rome were for 12 months or 36 months last to last. क्योंकि जो है एक जो है राज्य को जो है एक राज्य के ऊपर जो शासन कर रहा है उसका शासन करने का जो है जो समय भी जो है वो सीमित था। But Pilate was there for 10 years. लेकिन पिलातुस 10 सालों के लिए उस कुर्सी पर था And they were fed up. और वो पिलातुस से थक गए थे इसकी वजह से। That's why Pilate also was very smart. इसलिए पिलातुस ने भी बहुत ही बुद्धिमानी से चीजें की। When they brought Jesus who was accused, Pilate sent him back to Herod. और जब लोगों ने यीशु को पिलातुस के पास लेकर आए थे न्याय करने के लिए, तो पिलातुस ने कहा कि यीशु को हेरोद के पास लेकर जाओ, उसको न्याय करने। Because he was a man from Galilee and Galilee was under Herod. क्योंकि वो गलील से जो था और इसीलिए गलील का क्षेत्र जो है हेरोद के नीचे था। See, to come against Jesus, they made all sorts of plans. I cannot go into all this. हम जो है इसके जो है डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो है लोगों ने जो है या कुछ याजकों ने और लोगों ने जो है ये पूरी कोशिश की थी कि यीशु को कैसे भी मार डालना है। When someone is against you, they will do all they can to harm you. उसी भी प्रकार से जब कोई तुम्हारे विरोध में आता है तो वो हर वो कोशिश करेगा तुम्हें नीचे गिराने के लिए और जो है तुम्हें हानि पहुंचाने की। But don't react in the wrong manner. लेकिन जब वो लोग ऐसा करते हैं तो हमें गलत रीति से उनके साथ व्यवहार नहीं करना है, चीजों को परमेश्वर के हवाले करो। We need to pray that the Lord keeps you on the righteous path. हमें प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर आप हमें धार्मिकता के रास्ते पर चलना सिखाओ। We know that our God is a forgiver. He will forgive us. हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें हमेशा माफ करते रहते हैं And He leads us in the path of righteousness. और परमेश्वर ही हमको धार्मिकता के रास्ते पर चलाता रहता We है। all have our own weaknesses. हम सबके अंदर कोई ना कोई कमजोरियां हैं We all make mistakes at certain point of time. और उसी की वजह से हम बार बार गलतियां करते हैं। But we are not supposed to judge one another. और इसीलिए हमको एक दूसरे का न्याय नहीं करना है। He is on the throne. यीशु मसीह सिंहासन पर है He will judge. तो वो न्याय करेगा। We submit all things to God. हमें सारी चीजों को, चाहे जो भी हुआ हो या हो रहा हो या आगे होगा, सारी चीजों को हमेशा परमेश्वर के हवाले करते रहना। You know, people sometimes say, this is my viewpoint. कुछ लोग कहते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा है। When you say viewpoint, that is as good as judgment only. जब ऐसे लोग कहते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा है, तो यानी कि एक प्रकार से वो न्याय ही होता In the है। kingdom of God, we need to submit all things unto Him. और इसलिए राज्य में चाहे जो भी चीजें हो, प्रार्थना से हर चीज को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। So today, और इसलिए आज I bring good news. अच्छी खबर ये है Jesus' birth. कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में King Herod tried his best, हेरोद राजा ने पूरी कोशिश की, but God saw that his plan was fulfilled. लेकिन परमेश्वर ने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने योजना बनाई थी वो पूरा हो। How do we face the enemy? उसी प्रकार से हम अपने शत्रु का सामना कैसे करें? Not with spear and sword. तलवारों से नहीं, We face our enemy by submitting ourselves first to God. शत्रु के ऊपर विजयी होने के लिए सबसे पहले हमारे जीवन को परमेश्वर के हवाले सौंप देना है Allow God's mercy to come upon your life. और परमेश्वर की दया हमारे ऊपर आने दो। May His grace be sufficient for you. उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी हो Let सके। God decide the matter. और परमेश्वर को उस परिस्थिति के बारे में चीजें करने दो। See, the enemy is always taking advantage. शत्रु हमेशा जो है गलत चीजों को बोकर उसके ऊपर जो है जो अपने लिए चीजें हासिल करना। That's why we are not to fight against a brother or a sister in the kingdom. और इसलिए अगर कोई कुछ करे भी तो उसके जो है उसके साथ तुम झगड़ा नहीं करो। We need to be focused like the wise men. That's why they were wise. They were focused on what they wanted to do. तुम्हें अपना ध्यान जो है परमेश्वर के ऊपर ही रखना है, उसी प्रकार से जैसे बुद्धिमान लोगों ने अपना ध्यान आराधना करने में लगाया, हेरोद के बातों पर नहीं। So today, उसी प्रकार से in आज facing the enemies, शत्रु का सामना करने के लिए not flesh and blood, ध्यान में रखना कि जो है हमारा युद्ध आत्मिक है,
शारीरिक नहीं, not governments, राज्यता भी नहीं है, but the demonic power of darkness, लेकिन अंधकार की शक्तियां हमारे विरोध है। principalities and rulers in high places. आत्मिक दुष्टताएं हमारे विरोध में कार्य करती है We need to come against them by God's word. और उनका विरोध हमें कैसे करना है? वचन का इस्तेमाल करते हुए। We must continue to praise God at all times. हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते रहो, चाहे परिस्थिति जो भी हो, उससे हम विजयी के रास्ते पर चलते It रहो। was good that Jesus was being born, अच्छा था कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था, but Jerusalem was troubled. लेकिन उस वजह से पूरा यरूशलेम परेशान हो गया, Because such a time, this king was there at that time. क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था वो समय में ये दुष्ट राजा हेरोद सिंहासन पर बैठा था, इसलिए वो परेशान हो गए। We may be in troubled times, उसी प्रकार से हम भी शायद ऐसे परेशानी के दिनों में अगर है, but we bring everything to God. तो हम सारी बातों को परमेश्वर के हवाले करेंगे आज। We may not like things said about us. शायद कुछ लोग हमारे बुराई कर रहे हो या हमारे बारे में गलत चीजें भी कह रहे हो, उसके Many may बावजूद leave us. ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग हमें छोड़कर भी चले जाए, Many will cause things to happen that will not look good for us. या फिर ऐसी चीजें भी हो जिससे हमारी छवि खराब होती है। उसके बावजूद Don't retaliate evil with evil. आपको दुष्टता के बदले में उनके साथ दुष्टता नहीं करनी है। Stay on the path of God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते रहना है। And today, as we bow our heads, और इस कोशिश में हम अपने सिरों को झुकाएंगे इस we समय say, God, we come to you. और प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम आपके पास आते हैं। You are a faithful God. आप विश्वसनीय है परमेश्वर। We have our weaknesses, Lord. हमारे अंदर कमजोरियां हैं, We have committed errors, Lord. हमने काफी गलतियां की है प्रभु, Lord, but you know all things, how to set it right. लेकिन आप जानते हैं सारी चीजों को ठीक कैसे करना है। Lord, you have given us a call for each one of us. और प्रभु आपने हम सबको बुलाहट दिया है हमारे जीवन के लिए। You have called us into your kingdom, Lord. आपने हमें आपके राज्य में आने के लिए बुलाया, And you have called us by name, Lord. नाम से आपने हमें बुलाया प्रभु। You are working in our lives, Lord. आप हमारे जीवन में कार्य करते रहते हो। Lord, and today you touch our mind. आज आप हमारे मनों को स्पर्श करो, Free us, Lord, from every evil thoughts. हर दुष्ट सोच से हमें आजाद कर दो, Protect us from the fiery darts of the enemy. और शत्रु के हर तीर से हमें सुरक्षित रखो प्रभु। May we continue to see your light. हम निरंतर आपके प्रकाश की तरफ देखते रहे, May we continue to see the things of your kingdom. आपके राज्य की बातों पर हम अपना ध्यान देते रहे, इसके लिए सहायता करो प्रभु। Father, we do not depend upon any man, हम किसी भी मनुष्य पर निर्भर नहीं होते, but today we trust in the name of the Lord. लेकिन हम अपना विश्वास आप पर लगाते हैं। आज We trust for each one of us. आपके दिए गए बुलाहट पर हम विश्वास करते हैं, Then whatever you have called us, Lord, that we may finish our work on earth, Lord. और जो भी बुलाहट आपने हमारे जीवनों के लिए दिया है वो हम पूरा कर सके, इसकी सहायता करो प्रभु। Free us from the snare of the enemy, Lord. और शत्रु के हर जाल से हम सबको बचाए Set रखो, us free, Lord, from the net of the fowler. शैतान के हर दुष्टता से हमें बचाए रखो Lord, as this year comes to an end, और जैसे ये साल खत्म होने को आ रहा है, Lord, we will see a new birthing. हम सभी अपने जीवनों में एक नया जन्म होने वाली चीजें, We will see the goodness of God. आपकी भलाई को हम देखें We will see the things of God's precious jewels come into our lives. और आपके बहुमूल्य रत्न हम सबके जीवन में आ जाए, Lord, so that we may love, Lord, put love first in the kingdom. और हम सभी हमेशा प्रेम को आगे रखें। Father, give us strength, Lord. ये सब करने के लिए आप हमारी सहायता करो प्रभु। We need you to refresh us, my God. आप हमें ताजगी से भर दो, If you are hearing this for the first time, और अगर आप इस संदेश को पहली बार सुन रहे हैं make Jesus Christ your Lord and तो Savior. सबसे पहले यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बना लो। You are created in the image and the likeness of God. परमेश्वर के स्वरूप में प्रभु ने आपको बनाया है। You need to ask God to come into your life.
और इसलिए आपको परमेश्वर को अनुमति देना है कि परमेश्वर आपके जीवन में आ जाए। You need to say that, Lord, I make you my personal savior and master and savior of my life. आप प्रार्थना करो इस समय कि प्रभु मैं अनुमति देता हूँ, आप मेरे जीवन में आ जाओ, आप मेरे प्रभु बनो, आप मेरे राजा बनो, मेरे जीवन का प्रभु। Forgive me for all my sin. मेरे सारे पापों के लिए मुझे क्षमा करो प्रभु। I repent, Lord. मैं पश्चाताप करता हूँ मेरे सारे गलतियों के लिए, I come back to you. और मैं परमेश्वर आपके पास आना चाहता हूँ। Allow God's word to sink into your hearts. परमेश्वर के शब्द को अपने जीवन में गहरी रीति से जाने दो, And may the joy of the Lord be your strength. और परमेश्वर का आनंद तुम्हारी ताकत बन जाए। Pray without ceasing, for this is the will of God. निरंतर प्रार्थना करते रहो परमेश्वर से, यही परमेश्वर की इच्छा है। Give thanks to God at all और times. हमेशा प्रभु को धन्यवादित हृदय से अपना जीवन जियो। Father, I pray, Lord, that you touch your people. प्रभु सबको आप स्पर्श करो प्रभु इस समय। You have called us into your kingdom. आपने हमें बुलाया है आपके राज्य का भाग होने के लिए, And many more have been added, Lord. और इतने सारे लोग जो आपके राज्य में जुड़े हैं प्रभु। Help us, Lord, in this journey on earth. हम सबकी सहायता करो प्रभु, ताकि इस यात्रा में आपका हाथ थामे हुए हम चलें। That you give us the strength to face the things of the enemy. आप हमें बल दो प्रभु, ताकि हम शत्रु का सामना करें। Help us, Lord, so that we may speak and live your word. हमारी सहायता करो प्रभु, ताकि आपके वचन के अनुसार हम अपना जीवन जिए। We look up to you once again, my God. हम अपनी निगाहें आपकी तरफ करते हैं प्रभु। We ask for your blessings. आपकी आशीषें आ जाए हम सबके We जीवन ask for में। your mercies. आपकी दया आए हम पर, We ask for your grace. आपका अनुग्रह आए हम पर, Remove everything that is not of your kingdom in our lives. और जो कुछ भी आपके राज्य की नहीं है वो सारे बातों को हमारे जीवन से निकाल दो। Place the things of your goodness of your kingdom into our spirit man. आपके राज्य की भलाई की बातें हमारे जीवन में डालो प्रभु। God bless each one of you. परमेश्वर आप सबको आशीषित करें, May the grace of our Lord Jesus Christ be with you. और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। This is not the Christmas message. आज का संदेश क्रिसमस का संदेश नहीं था। This is the message of facing the enemy. आज का संदेश था कि हम शत्रु का सामना कैसे करें जो हमारे विरोध में आता है। God has a good plan for your lives. परमेश्वर ने एक अच्छी योजना बनाई है आपके जीवन के लिए। Go before the Lord and cry out to Him. परिस्थितियां जो भी हो, परमेश्वर के सामने जाओ, उसकी उपस्थिति में जाओ और उसको सारी बातें बताओ। Take your file before our Maker. आपके सारे परिस्थितियों का जो केस फाइल है, स्थितियां हैं, परमेश्वर के सामने जाकर रखो, उसको करने दो। Justice comes from the Lord. क्योंकि न्याय परमेश्वर की ओर से आएगा तुम्हारे लिए। Justice comes from the Lord. परमेश्वर की ओर से न्याय आता है हमारे लिए। Justice comes from the Lord. न्याय परमेश्वर की ओर से आएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे Be fruitful. और आप फलदायी बनो, Multiply. बहुगुना हो जाओ, Increase. आपकी बढ़ोतरी हो, Unite together with other brothers and sisters. दूसरे भाई बहनों से एक हो जाओ, Join your hearts. आपके हृदय को एक बनाओ, Get rid of all these kinds of divisive spirits. और सारी दुष्टता से आप अपना पीछा छुड़ा लो And walk in the things of God. और परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहो। May you continue to be a blessing. हमेशा दूसरों के लिए आशीषित बनो May you continue to speak the word of God boldly. और धैर्यता से वचन का प्रचार करते रहो। Thank you, Father. धन्यवाद We पिता। give you all glory. सारी महिमा हम आपको We देते give हैं you आज all के वचन honor. के लिए प्रभु, सारा आदर आपको देते हैं And we give you all praise. और आपको सारी स्तुति देते Be हैं। joyful. Thank you, May Father। all glory be given only to our King. हमेशा आनंदित रहो और सारी महिमा सारी चीजों के लिए परमेश्वर को मिले। Until we meet next time. और हम फिर से मिलेंगे जल्द। Shalom. शालोम। Amen.